नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 1 फरवरी को मादिगा समुदाय का वामन पर जागरूकता सम्मेलन, स्वामीदास किंपनूर ने कहा। शरण अंबिकर चौड़ैया जयंती के अवसर पर भव्य रैली निकली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेलगावी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, संविधान की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी। भाजपा नेता ने कहा, मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सही समय पर सही नेता मिला, पीएम मोदी की तारीफ। जाने सीएम चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एनकाउंटर में 16 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 1 फरवरी को मादिगा समुदाय के वामनुस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नौबाद नाला में डॉक्टर बाबू जगजीवन राम सामुदायिक हॉल में एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें काया का योगी, आद्य वचनकारा और शिव शरणा मादरा चन्नैया की 974वीं जयंती मनाई जाएगी। कर्नाटका मादिगा कल्याण संघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वामीदास किंपनूर ने कहा कि यह उत्सव अन्नदासोह और नए कैलेंडर के शुभारंभ के रूप में मनाया जाएगा। जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उस दिन कर्नाटका मादिगा कल्याण सोसाइटी और काया कयोगी शिव शरण मादरा चन्नैया जयंती उत्सव समितियों के संयुक्त तत्वाधान में सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक भोजन अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता वादिराजा भाग ले रहे हैं तथा चित्रदुर्गा के बसवमूर्ति मादरा चन्नैया स्वामी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान वहां स्थित मादरा चन्नैया मूर्ति की पूजा और माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वन पर्यावरण एवं जीव राज्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान, सांसद सागर खंड्रे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर, सभी विधायक एवं विधान परिषद सदस्य, हमारे समाज के नेतागण, राजनीतिक नेता और लेखक विचारकों सहित 1000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने यह बात कही और अधिक लोगों से इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। कैमरामैन पुपराज कवरेज। 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ನೋಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾವ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಶಿವಶರಣ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಮಾದಿಗ ಜನತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಯುವಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ। ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಕೆಂಪನೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜರುಗಲಿದೆ। ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಿಜ ಶರಣ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರ 974ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು
ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ನೌಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾದಾ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ಭವನ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಭವನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದ ನಡೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ಪುರುಷ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯವರನ್ನು ನೂಲುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂಧಕ ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮುಖಾಂತರ ಬೀದರ್ ಜನತೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಶಿವಶರಣ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರ 974ನೆಯ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ಶಿವಶರಣ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನವರ ವಚನವನ್ನು ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಲ್ದಂಗಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಕೆಂಪೇನವರ ಅಣ್ಣನವರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮುಚ್ಚೋದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕೂದುಕೊಬ್ಬ ಶರಣರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ शरण अंबिगर चौड़ैया जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय से शरण अंबिगर चौड़ैया भव्य चित्र की पूजा आदि के बाद एक रथ रैली निकाली गई, जो बाजे गाजे की गूंज के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रंग मंदिर पहुंचा, जहां पर मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर में रैली बहुत ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें समाज के प्रमुखों ने भाग लिया और विभिन्न कला मंडलियों ने भाग लेकर रैली में रौनक बढ़ाई। इससे लोग अभूत ही आकर्षित हुए। रैली के दौरान समाज के प्रमुखों ने मीडिया से बात की, अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಸವಣ್ಣ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಿಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗಿಯಾದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಚ್ಚಿನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನಿದರ್ಶನ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು, ಅನ್ಯ ಸಮಾಜದವರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನಾ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತೇನು ಬಂದಿದ್ದರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಬಸವಣ್ಣವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 362 ಶರಣರಲ್ಲಿ ನಿಜಶರಣ ಅಂತ ಬಿರುದು ತಂದುಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ, ಅನ್ಯ ಸಂಘಟನೆದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮುಖಪ್ಪ ಶೇಖಾಪುರ ಕೋಲಿ समाज बीदर दक्षिण क्षेत्र का अध्यक्ष आगी सन्मुखप्प शेखापुर। आज हम निशरण अंबिगर चौड़ैया की जयंती मना रहे हैं बीदर में। बीदर सबको इस मौके पर आप सब को स्वागत करते हुए और बहुत खुशी हो रही है। शरणनाड़ में जो निशरण अंबिगर चौड़ैया जो वचन लिखे थे, हम शरण में इतना अच्छा लिखे हैं वो आज के जीवन में उनका वचन हम ये करके अपना जीवन पावन कर सकते हैं। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में लिखे गए हैं उनका वचन हर एक को एक व्यक्तिगत नहीं, इस पूरे समाज को सुधारने का काम किए हैं। बसवण्ण के परम शिष्य थे वो। शिष्य मतलब उनके विचारधारा के ऊपर अपना निजशरण अंबिगर चौड़ैया बोल के उनका नाम उस समय में भी इतना अच्छा गुण है उनके पास। हम उनका जयंती करते हुए सभी बीदर जनता को मैं शुभाशय देना चाहता हूँ। जिला टोपड़ी समाज से मैं जिला उपाध्यक्ष बात कर रहा हूँ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸಹ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೋಕರಿ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಾಜದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ सरस्वती एम जमादार। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बेलगावी में सुवर्ण सौधा के सामने महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा कांग्रेस के गांधी भारत कार्यक्रम का हिस्सा है और यह 1924 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बेलगावी में महात्मा गांधी द्वारा 49वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने की शताब्दी की याद दिलाती है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर संविधान और लोकतंत्र नहीं होता तो देश में अराजकता होती। उन्होंने कहा, जहां महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई, वहीं जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। खड़गे ने कहा कि सुवर्ण विधान सौधा में गांधी की प्रतिमा स्थापित करना बेलगावी को एकमात्र स्थान के रूप में सम्मानित करता है जहां राष्ट्रपति ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने कहा, हमें महात्मा गांधी की उपलब्धियों, बलिदानों और योगदानों पर विचार करने के लिए और अधिक समय चाहिए। भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने रविवार को बेलगावी के पास सुलेभवी में एक हिंदू सम्मेलन में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ विवादित टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों, अभिनेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वह अक्सर टीवी चैनलों पर महिलाओं के साथ उनके दुर्व्यवहार के लिए मुख्यमंत्री को निशाना बनाती हैं और यहां तक कि उनके दुर्व्यवहार की कथित घटनाओं की एक सूची भी पढ़ती हैं। नाजिया की टिप्पणियों को एक वीडियो क्लिप तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाजिया ने बताया कि वह पिछले 32 वर्षों से मुसलमान हैं और कुंभ मेले में भाग लेती है तथा गंगा में डुबकी लगाकर सनातनी मुसलमान बन जाती है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 54 सालों से हिंदू सोए हुए थे, लेकिन अब देश में हिंदुओं को जगाने के लिए कई हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सैकड़ों सालों की कुर्बानियों का फल आखिरकार राम मंदिर के निर्माण के रूप में मिला है। मंगलूर शहर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कोटेकर सहकारी बैंक की सबसे बड़ी डकैती को 60 घंटे के भीतर सुलझा लिया।
और 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुंबई के धारावी के एक कुख्यात गिरोह का हिस्सा बताए जा रहे हैं। 17 जनवरी को दोपहर 1:20 के बीच मंगलूर के बाहरी इलाके में उल्लाल पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत कोटेकर व्यवसायी सेवा सहकारी संघ केसी रोड तालापाड़ी शाखा में अज्ञात नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा सशस्त्र डकैती की गई थी। यह घटना उसी दिन हुई जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक कार्यक्रम के लिए शहर के दौरे पर थे। अपराधियों ने नकदी और सोने के आभूषण समेत करीब 4 करोड़ रुपए की कीमती चीजें लूटी। उल्लाल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आर्म्स एक्ट और बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। प्रभावित फील्ड ऑपरेशन के जरिए मंगलूर सिटी पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के पद्मनेरी गांव से 3 आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान 36 वर्षीय मुरुगाड़ी थेवर, 35 वर्षीय योजुआ राजेंद्र और 36 वर्षीय कन्ननमणि के रूप में हुई। अभियान के दौरान पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त कार, 2 पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, छुरे तथा चोरी की गई नकदी और सोना एक हिस्सा बरामद कर दिया है। मंगलूर के डीसीपी कानून एवं व्यवस्था सिद्धार्थ गोयल ने कहा, बरामद सामान की सही कीमत स्थानीय पुलिस की सहायता से माजर के बाद निर्धारित की जाएगी। माना जा रहा है कि ये तीनों मुख्य आरोपी हैं। मामले में अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत को सही समय पर सही नेता मिला है, जो देश को विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मानदंडों पर शीर्ष पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। नायडू ने यह बयान 2047 तक स्वर्ण आंध्र पर एक आर्थिक कार्यबल की शुरुआत के मौके पर दिया, जिसमें राज्य के विकास और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नायडू ने कहा कि उनके राज्य आंध्र प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारतीय समाज की वैश्विक स्वीकार्यता का भी जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय दुनिया भर में सबसे अधिक स्वीकार्य समुदाय है और यह रुझान भविष्य में भी जारी रहेगा। नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, हमारे पास सही समय पर सही नेता है। मोदी जी के पास देश के लिए सुधारों और नीतिगत दिशा के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के शीर्ष स्थानों पर पहुंचेगा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर गरियाबंद इलाके में हुई है। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान 24 घंटे से ज्यादा समय से जारी है। इससे पहले सोमवार को मुठभेड़ हुई थी, जिसमें महिला नक्सलियों की मौत हुई थी। वहीं सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई। गरियाबंद मुठभेड़ के बाद अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। मुठभेड़ वाले स्थल से 47 AK-47 SLR इंसास और अन्य स्वचालित हथियार बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूर्वी उपनगर स्थित एक शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में मंगलवार को एक अज्ञात युवती का शव मिला। इस घटना से मॉल और आसपास के लोग दहशत में आ गए। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम्स मॉल में मंगलवार सुबह वहां के एक कर्मचारी ने युवती का शव देखा। कर्मचारी ने इस घटना की सूचना अपने सीनियर अधिकारी को दी। इसकी सूचना पुलिस को लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गए और निरीक्षण के बाद शव को बाहर निकाला। अधिकारी ने बताया कि युवती का शव बेसमेंट में एकत्र हुए पानी में तैरता हुआ पाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत युवती की उम्र लगभग 30 वर्ष थी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दौरान कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है। ऐसे में 26 जनवरी से पहले परेड की तैयारियां की जाती हैं। इसे लेकर ट्रैफिक विभाग द्वारा बीते दिन नो अलर्ट जारी करते हुए कुछ रास्तों पर लोगों से न जाने की अपील की गई थी। वहीं कुछ वैकल्पिक रूट भी सुझाए गए थे। इसी कड़ी में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के मद्देनजर मंगलवार को मध्य दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। इस दौरान सैकड़ों यात्री इस जाम में फंसे रहे। इस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। कर्तव्य पथ के पास भारी ट्रैफिक जैम की तस्वीर को एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि आज ट्रैफिक पुलिस से यातायात को नियंत्रित करने के लिए कहना बहुत ज्यादा है। पूरी मध्य दिल्ली जाम में फंसी हुई है। वहीं कुछ यूजर्स ने बताया कि वे काम के लिए देर से पहुंचे या दिल्ली की सड़कें पर लगे जाम के कारण वे काम पर ही ना जाए। बता दें कि इस बीच दक्षिणी दिल्ली में भी जारी जाम की खबर देखने को मिली है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, एमबी रोड पर वह 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। वहीं मेट्रो से जाने वाले कुछ यात्रियों ने गणतंत्र दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा जांच के कारण मेट्रो स्टेशन पर लगने वाली लंबी कतारों की शिकायत की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। तीनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे। इसी बीच कालकाजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी महावीर बोसौया आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज हमें खुशी है कि कालकाजी के एक प्रतिष्ठित समाजसेवी महावीर बसोया आप ज्वाइन कर रहे हैं। कोरोना के दौरान मृतकों के अंतिम संस्कार की बड़े स्तर पर उन्होंने व्यवस्था की। वह घायल गायों की सेवा और उपचार के लिए भी काम करते हैं। एमसीडी चुनाव में श्रीनिवासपुरी वार्ड से ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ इन दिनों जैसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह निंदनीय है। इसका जवाब आप लोग दें। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर कि वे बनिया के बेटे हैं, जादूगर हैं, एक सीएम का नाम बताइए जिसने बिजली पानी यात्रा फ्री किया हो और मुनाफे का बजट दिया हो। उन्होंने दिल्ली में चमत्कार किया तो जादूगर ही है। अरविंद केजरीवाल द्वारा रामचरितमानस के अपमान पर भाजपा के सवालों को लेकर उन्होंने कहा, भाजपा का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। भाजपा उपवास कर रही है कि रावण का अपमान कर दिया। यह साबित हो गया कि भाजपा रावण को अपना वंशज मानती है। इनका असली चरित्र चुनाव से पहले पता चल गया कि ये रावण के अपमान से आहत हो गए हैं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अचानक बाढ़ आने से भूस्खलन होने के कारण 16 लोगों की मौत हो गई, 9 अन्य लापता है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बचाव कर्मियों ने राहत एवं बचाव कार्य के दौरान 16 लोगों के शव बरामद किए हैं जो मुख्य द्वीप जावा के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गांव में अचानक आई बाढ़ में बह गए। ये शव मलबे और चट्टानों के नीचे दब गए थे। उन्होंने बताया कि बाढ़ और भूस्खलन की घटना 9 लोगों के लापता होने की सूचना है। स्थानीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रमुख बरगर्स कटुरसारी ने बताया, सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदियों में आई बाढ़ ने मध्य जावा प्रांत के पेकलोंगन रीजेंसी के 9 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ों की ढलानों से मिट्टी और चट्टानें नीचे गिरी, कई पेड़ भी उखड़ गए। उन्होंने कहा कि बचाव कर्मियों ने सबसे ज्यादा प्रभावित पेंटू क्रियोनो गांव से मंगलवार तक कम से कम 16 शव निकाले। उन ग्रामीणों की तलाश जारी है जो लापता है। लॉस एंजलिस में जंगलों से लेकर शहरों तक फैली आग विनाशकारी साबित हुई है। आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। जहां भी आग लगी थी वो जगह पूरी तरह से खाक में तब्दील हो गई है। आग ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। आग की चपेट में आने से अब तक कुल 27 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि बहुत से लापता है। लापता लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है। आग की चपेट में आने से 22,000 से ज्यादा घर भी जल चुके हैं। आग से मची तबाही के बीच एक बार फिर मौसम ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। आग को फैलाने के लिए जिम्मेदार
तेज हवाओं की वापसी ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है। कुछ स्थानों पर 88 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसलिए यह एक विशेष रूप से खतरनाक स्थिति है। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने जोखिम वाले क्षेत्रों में पहले से ही इंजन और अग्निशमन दल तैनात कर दिए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 फरवरी को मादिगा समुदाय का वामन पर जागरूकता सम्मेलन, स्वामीदास किंपनूर ने कहा। शरण अंबिगर चौड़ैया जयंती के अवसर पर भव्य रैली निकली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेलगावी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, संविधान की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी। भाजपा नेता ने कहा, मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सही समय पर सही नेता मिला, पीएम मोदी की तारीफ। जाने सीएम चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एनकाउंटर में 16 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।